Good evening, everyone. If you want to speak English well, practice helps you a lot to speak any languages. We need to have a practice a lot. So, if you want to become fluent in English, no doubt you need to work on your practice and you should have practice a lot. If you're not going to have a practice and you have a dream to speak English, so your dream will remain dream forever. Your dream will remain dream forever if you are not going to have a practice. And if you want your dream should be actualized, it turns into reality. So this is very essential for you to have a practice a lot. Now the question creates how to do practice and where to do practice. Okay. So the first question is how to do practice. At the, uh, okay. That's very simple to understand. What I taught you today, yesterday, uh, 2 or 3 or 4 days back, you just try to translate or try to speak sentences to your friends. 2 people, more than 2 people are enough to have a practice. Well, and the second question was that where to do practice? Many people complain that I have none. With whom do I do practice? So the answer is very simple. I have added you in a group. That group name is Practice How to Speak English, I think. So just go in that group with your friends and have a practice. There is no time foundation. You can have a practice after 8 p.m. to uh, 2 or 3 a.m. You can do whole night. So if you want to become fluent in English, so you need to work harder and harder, and you need to do practice to speak any languages. Practice makes great role. Good. Dear students, today we are going to learn worksheet number 12. Worksheet number 12. And in this worksheet, we will going to learn interrogative sentences. Interrogative sentences means what? Means a sentence where you'll ask questions to someone. If you want to ask a question to someone, then you need to learn how to ask a question. Okay. Interrogative sentences are generally 2 types of. First, yes, no type interrogative sentences. Yes, no type means you need to answer either yes or no, and the answer will be relevant. And such kind of sentences it starts with any helping verb like is, am, are, was, were, shall, will, have, has, do, does, did. When someone starts a sentence with helping verb like is, am, are, was, were, shall, will, have, has, do, does, did, can, could, may, might, should, you need to understand that this man wants answer either yes or no. For example, are you idiot? No. Are you a drunkard? No. Do you
tell a lie? No. Do you speak the truth? Yes. Do you speak English? Yes. Okay. Do you love Excellent Coaching Center and Mr. Tokir Alam? Yes, yes, yes. Okay. So whenever you someone asks you a question to you using helping verb, so you need to answer either yes and no, yes and no, yes and no. Okay. But if someone is asking a question to you and he's using question word like what, why, how, where, when, how many, how much, how much. So if you speak yes and no, so that answer will be not r- that answer won't be relevant. Why? Because he's not asking about yes and no. He don't want confirmation, but he wants some information. So if someone asks you, why do you want to learn how to speak English? And you say no. Oh, what is this? This is not a proper answer. If someone say, how do you speak English? And you say yes. What is yes? What is this? Is this answer? No. So dear student, questions, sentences are two types of. First, yes, no type interrogative sentences. And the second one is WH interrogative sentences. So today we are going to learn WH interrogative sentences, and we will see that how to learn how to speak such kind of sentences where someone asks about why, how, what, where, how many, how much, etc. Okay, so let's start and let's see how to speak this. Well, one thing I would like to ask you before teaching or before starting the lesson, should I continue to teach in English or should I speak Hindi? Tell me in comment box. Should I continue to teach in English? Should I need to speak Hindi also so that you may understand well? So write in comment box so that I may know what's your views about that. Fifty-fifty. Don't use okay Hindi. Please continue English. English. Both are better for everyone. I'm not rich. What is this? Sorry, I don't have a car. I will have in future. I think 50-50 is a better idea. Why? Because everyone may understand well. That's great. I'm going to explain Hindi as well as in English. Okay? That will be better for everyone. First, I will speak English, then I will speak Hindi. Well, dear student, as I have told you that question words are generally two kind of. First, yes, no type interrogative sentences, and the second one, WH interrogative sentences. तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे हम सवाल पूछें। ये सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक, जहाँ आंसर में आप सिर्फ यस या नो कहें, आप यस नो कह देंगे, आंसर हो जाएगा। और इस तरह के सेंटेंसेस को यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। पूरा हिंदी में जानना हो तो कहते हैं हाँ या ना वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं हाँ या ना वाले प्रश्नवाचक वाक्य। और दूसरा वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं,
और इनका आंसर यस नो में नहीं होता है, बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको पूरा एक डिटेल देना पड़ेगा। वेल, सबसे पहली बात कि वो जो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे बोले जाते हैं। द क्वेश्चन rises that how to speak those interrogative sentences which is that's answer is either yes or no. That's very simple. Such kind of sentences starts with any helping verb like is, am, are, was, were, shall be, shall, will, not be, shall, a, will, have, a, has, do, a, does, did, can, could, may, might. Okay. तो वो जो yes no टाइप वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। चाहे इज, एम, आर से हो, वाज, वर से हो, शैल, विल से, शैल हो या विल हो या हैज हो, डू हो या डज हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर रखकर की जाती है। वेल, आज के इस लेसन में हम वो पहला वाला इन वो जो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो नहीं पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप बात को समझे। आज हम दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सवाल ये है कि वो पहला वाला हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। वो जो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है हम उसको छोड़ क्यों रहे हैं, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी आप लेसन नंबर 11 पे आ चुके हैं और लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक जितना भी लेसन आया ना, हर लेसन में मैंने आपको यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया। लेसन नंबर 1 में बोला था क्या मैं दोषी हूँ, क्या मैं पागल हूँ। लेसन नंबर 2 में क्या तुम गरीब हो, क्या तुम अमीर हो। लेसन नंबर 3 में क्या वो एक डॉक्टर बनेगा, कि आप खुश रहेंगे। इस तरीके से हर लेसन में मैंने आपको यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया। लेकिन कमाल की बात है कि लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक एक भी मैंने आपको ऐसा सेंटेंस नहीं बताया जिसमें ये वाई, व्हाट, वेयर, हाउ आते हों। नहीं बताया था मैंने। इसलिए आज का ये जो वीडियो है या आज का ये जो लेसन है, ये टोटल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है यस नो वाले सेंटेंसेस के लिए नहीं, बल्कि WH फैमिली मेंबर वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। वेल, डियर स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पहले से मालूम होगा कि व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स क्या होता है। वैसे तो मैं अभी सब बताऊंगा, लेकिन उनको पहले से मालूम होगा और वो लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस ये जान जाना कि व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्या होता है। आप इससे इंग्लिश आप बोल तो सकते हैं, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपको मैं कुछ और बता दूं और अगर आप उसे अपने नॉलेज में इंक्लूड कर लें तो आपकी स्पीच रेट जो है ना फास्टर हो जाएगी। वेल, क्या, आइए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल इट्स मीनिंग, दैट्स व्हाई इफ यू डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाई, व्हाट, वेयर, दैट्स व्हाई यू मे नो। मीनिंग बता दे सबसे, ताकि हो सकता है आप में से कोई कंफ्यूज हो तो वो सीख जाए। व्हाट मीन्स क्या होता है भाई, व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मेनी मीन्स कितना, लेकिन उस नाउन के लिए जो काउंटेबल हो, जो गिना जा सके। और हाउ मच मीन्स कितना, लेकिन उस नाउन के लिए जो गिना ना जा सके। पानी, दूध, खून, आटा, बेसन, है ना। वेल, तो एक बार और कह दूं, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, एंड हाउ मेनी मीन्स कितना, कितना, लेकिन काउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मच मीन्स कितना, लेकिन आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि अनकाउंटेबल है, जो इसको आप गिन नहीं पाएंगे। आगे की बात करने से पहले, अच्छा चलिए, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको बताता हूँ कुछ देर बाद। पहले ये पूरा स्ट्रक्चर पहले बता दूँ। जब भी आपको एक सवाल पूछना हो,
जिसमें आपको बोलना क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, तो सबसे पहले आप वही क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी वह वर्ड जो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है आपको, वाई, वॉट, वेयर। उसके बाद आप तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे। हेल्पिंग वर्ब या तो अगर है में है तो इज, एम, आर बोलेंगे। था में है तो वाज, वर बोलेंगे। गा में है तो शैल, विल बोलेंगे। अगर रखने की बात करेंगे कि मेरे पास ये है वो है, तो हैव या हैज या हैड बोलेंगे। हैव या हैज प्रेजेंट में बोला जाता है, पास्ट में हैड बोला जाता है। और अगर आप कोई आदत दिखाने वाला बात करेंगे कि वह झूठ नहीं बोलता है, चाहे वो यह काम नहीं करता है, आप डू या डज बोलेंगे या डिड बोलेंगे। अगर कोई मॉडल वर्ब है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो आप वो बोलेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब बोलना लाजमी है, कंपलसरी है। जी हाँ। आप सोचेंगे नहीं बोलेंगे तो, नहीं बोलेंगे तो ये तो दादागिरी वाली बात हो गई। क्यों नहीं बोलेंगे आप? नहीं, अगर मान लीजिए हम नहीं बोलेंगे तो, अच्छा नहीं बोलेंगे तो जरा यहाँ देखिए। मान लीजिए आपने व्हाट लिखा और आपको बोलना चाहिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आर बोलना चाहिए आपको, लेकिन आप तो दादा हैं, तो आप इधर बोलेंगे व्हाट यू आर ईटिंग। मैंने ये सेंटेंस गलत लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं। इस आर का जगह यू के पहले और व्हाट के बाद है, लेकिन चलिए हमने नहीं लिखा, हमने उधर कर दिया, ये बताने के लिए कि क्या हो जाएगा। ओके। अगर आप क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे तो क्वेश्चन वर्ड के एक नहीं दो दो मीनिंग है, वो अपना मीनिंग ही चेंज कर लेंगे। और ऐसा मीनिंग लेकर आए ना कि सवाल पैदा ही नहीं होगा। व्हाट का मतलब क्या होता है ना, तो व्हाट का मतलब जो भी होता है, जो। व्हाट मतलब जो होता है, वो उसी व्हाट का मतलब क्या होता है, और उसी व्हाट का मतलब जो होता है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हम कैसे समझेंगे कि व्हाट का मतलब कब होगा जो, और व्हाट का मतलब कब होगा ये क्या। अगर कहीं व्हाट लिखा है और उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम या आर है, वाज या वर है, डू या डज है, डिड है, हैव, हैज है, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, तो यकीनन वो जो व्हाट है ना, वो सवाल पूछ रहा है, वो क्वेश्चन वर्ड है, पूछ रहा है क्या। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट हैव यू ईटेन, हाय व्हाट हैव यू ईटेन। व्हाट हैव मैंने व्हाट के बाद बोला हैव। व्हाट हैव यू ईटेन, क्या खाया तुमने। व्हाट हैव यू गिवन, क्या दिया तुमने। व्हाट डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर, वहां क्यों गए। व्हाट डिड यू गो देयर। तो अगर आप क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड बना रहेगा, सवाल करेगा आपसे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो, जैसे आपने कह दिया व्हाट यू आर ईटिंग, तो ऐसा व्हाट जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो व्हाट का मतलब हो जाएगा जो। व्हाट यू आर ईटिंग, जो तुम खा रहे हो। जो तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ कि जो तुम खा रहे हो ना, वो हेल्दी नहीं है। हाँ। जैसे मुझे कहना हो कि तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझ सकता हूँ, तो इसको ऐसे बोलूं, जो तुम कह रहे हो मैं नहीं समझ सकता हूँ। जो तुम कह रहे हो मैं नहीं समझ सकता हूँ, कैसे बोलेंगे। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू व्हाट यू। देखिए व्हाट यू के बगल में कोई हेल्पिंग नहीं आ रहा है। व्हाट यू, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो यहाँ वर्ड का मतलब हो गया जो, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था। बस ये प्रॉब्लम वर्ड के साथ नहीं है। वेन का मतलब कब पता है ना आपको, कब, वेन मीन्स कब। तो एक बात और जानिए, वेन मीन्स जब भी होता है। सिचुएशन वही है, हेल्पिंग वर्ब देंगे तो सवाल करेगा कब बोलेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे तो हो जाएगा जब।
एग्जाम्पल, यू आर स्लीपिंग व्हेन आई केम, यू आर स्लीपिंग व्हेन आई केम। जब मैं आया तो आप सो रहे थे, जब मैं आया तो आप सो रहे थे। ओके, उसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए, नया बताएं। उसी तरीके से एक वर्ड है वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। बच्चे बच्चे को पता है वेयर मीन्स कहाँ। अरे भैया, तो ये देखिए ना, वेयर मीन्स जहाँ भी होता है। आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव, वेयर यू, वेयर यू, वेयर यू। वेयर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट वेयर यू, तो पता है क्या मतलब हुआ? पता है जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम रहते हो पता है। कहाँ रहते हो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं खुद बता रहा हूँ। सवाल थोड़ी करना है कि मुझे बताओ ना तुम कहाँ रहते हो। अरे भाई, मैं तुमको खुद बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। यानी जहाँ तुम रहते हो वो लोकेशन मुझे पता है। हम्म। कोई लड़का पूछा अपने पापा से, पापा यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, यहाँ खेलने चला जाऊं। पापा कह रहे, अरे यार जहाँ जाना है जाओ तुम, जहाँ जाना है जाओ। गो वेयर यू लाइक, गो वेयर यू लाइक, गो वेयर यू लाइक। पापा सवाल नहीं कर रहे कि कहाँ जा रहे हो, पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि खुद बता रहे कि जाओ ना, जहाँ जाना चाहते जाओ। तो देख रहा आपने, देखा आपने, उस वेयर का मतलब हो गया है जहाँ। अभी ऊपर वाले वर्ड में वेन का मतलब हो गया था जब। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू मेड मी अ कॉल, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू मेड मी अ कॉल। जब आप मुझे फोन किए थे तो मैं सो रहा था। जब, जब आप फोन किए थे तब मैं सो रहा था। इतना एग्जाम्पल्स मैंने दिया ताकि आप इस बात को ठीक से समझ जाओ कि क्वेश्चन वर्ड के एक नहीं, दो दो या दो दो या चार चार पांच पांच मीनिंग होते हैं। सॉरी, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल दिया है ना। कंट्रोल। क्वेश्चन वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, यानी दो होते हैं। तीन चार बोलूंगा तो बताना भी तो पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। Dear student, it is clear that after question word, you will surely write helping verb. Many times I have spoken helping verb, helping verb, helping verb. This is very common to say helping verb, but generally, sometimes these are not helping verb. These are called linking verb. जो मैंने अभी बोला ना, आप चूंकि इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना आपको इतना डीप में ले जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बस ऐसे दिमाग में आ गया तो बोल दिया। अच्छा नहीं लगेगा तो हटा दीजिएगा। मैंने कई बार अभी कहा हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ। एक आम बच्चा ना जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज को देखता है ना, तो वो इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही जानता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ना, वर्ब की मदद करने वाला। तो ये जो इज, एम, आर, वाज, वर होते हैं ना, हमेशा इनका नाम हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। कभी कभी इनका नाम लिंकिंग वर्ब भी होता है, LINKING, लिंकिंग वर्ब। लेकिन आपको ये क्या फर्क पड़ता है, ये लिंकिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? आप नहीं जानेंगे तो भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस ऐसे दिल में आ गया तो बता दिया, आपको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है। वेल, 3 नंबर पे आप बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अच्छा कई लोग सोचते हैं सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? अरे भाई, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट है। चलिए ना, मैं कुछ चीजों के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी कुर्सी टूटी है, बताइए किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कुर्सी के बारे में, तो कुर्सी हो गया सब्जेक्ट। आपका चश्मा प्यारा है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? चश्मा के बारे में, तो चश्मा सब्जेक्ट हो गया। आपका मोबाइल टूटा है, किसके बारे में बोल रहा हूँ? मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल हो गया सब्जेक्ट। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वही होता है सब्जेक्ट। हाँ। सीता लंबी है, किसके बारे में बोल रहा हूँ? सीता, तो हो गया सब, वही सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बोलेंगे, अब मेरे सामने सोलर पैनल है तो मैं कह सकता हूँ सोलर पैनल गंदा है, किसके बारे में बोला? सोलर के बारे में, हो गया वही सब्जेक्ट।
जिसके बारे में बात करते हैं ना, वही तो है सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी आप बोलना हो आप बोलेंगे। कई बार नाउन आता है, यानी डॉक्टर इंजीनियर आता है। कई बार कोई तारीफ करने वाला वर्ड आता है, अच्छा दुबला पतला छोटा मोटा अंधा। और कई बार काम आता है, आना जाना खाना पीना पढ़ना पढ़ाना। जो भी आता है 4 नंबर पे वो बोलेंगे, और कुछ बचा तो 5 नंबर पे बोलेंगे। ठीक है। अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिस की ओर। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो कि अगर आप जानते हैं तो ये बहुत मदद करेगी आपको किसी की क्वेश्चन को समझने में। Now I'm going to tell you a special thing, and this will help you to understand others' question quickly. If you know well, so you'll find very easy to understand anyone's question within a seconds. So let's know that what's that rule. आइए उस रूल के बारे में जानते हैं। कोई आदमी आपसे सवाल करता है, और अगर कोई आदमी इंग्लिश में कोई बात करता है और वो सवाल नहीं करता है, तो आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए वो अपने बारे में बता बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप सुनते जाइए। लेकिन प्रॉब्लम तो तब है कि जब उसने सवाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सवाल करने पर जवाब देना पड़ता है ना। अच्छा, तो अगर वो सवाल कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के कर रहा है, अ, आर यू आर यू अ सिंगर? आर यू रिच? आर यू हेल्दी? तो बस हाँ, ना बोल देंगे हो जाएगा, यस, नो। लेकिन अगर वो इन सब वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है। सपोज़ कि वो एक आदमी आपसे क्वेश्चन कर रहा है और व्हाट बोल के कर रहा है। व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट? व्हाट का मतलब ये हो गया कि वो आदमी किसी प्रोडक्ट, कोई चीज़ सामान का नाम जानना चाहता है। आप उसको इधर-उधर की बात ही ना करें कि अ, 3 बजे या मंडे को या घर पर, ये सब बातें ना करें। वो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, चीज़ सामान के बारे में जानना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हे हे व्हाट्स इन योर पॉकेट? व्हाट्स इन योर पॉकेट? क्या है तुम्हारी जेब में भाई? यानी बताओ वो प्रोडक्ट, वो चीज़ सामान का नाम बताओ जो तुम्हारे पॉकेट में है। दैट्स टॉफ़ी। टॉफ़ी है सर। दैट्स फाइन। दैट्स नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं है। तो जब भी कोई इंसान कोई क्वेश्चन कर रहा है और व्हाट से बोल रहा है ना, तो समझ जाइए वो कोई ना कोई नाउन जानना चाहता है। हे व्हाट हैव यू ईटन इन ब्रेकफास्ट? व्हाट हैव यू ईटन इन ब्रेकफास्ट? क्या लिए हो नाश्ते में? क्या खाए हो नाश्ते में? अब आप उसको बताओ कि क्या-क्या आप खाए हैं, उस चीज़ सामान का नाम बोलो आप। तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूँ कि आपको पहली बात समझ में आ गई? कोई इंसान अगर व्हाट से कोई क्वेश्चन करता है, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान किसी प्रोडक्ट, किसी चीज़, सामान के बारे में जानना चाहता है। एम आई राइट? आगे बढ़ें? चलिए, एक बार ज़रा देख लें कमेंट बॉक्स का माहौल क्या है? कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है? शाहिद answer required to record this meeting locally. Of course, करिए सर। आप जिस तरीके से इंग्लिश बोलना चाहें बोलिए। आप कामयाब तो मैं कामयाब। किसी ने कहा है कि एक उस्ताद को उसके स्टूडेंट ही महान बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा है। आप कामयाब तो मैं कामयाब। एक साहब का क्वेश्चन है कि ये डब्ल्यूएच के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग सकता है? हाँ, हाँ, कोई भी लग सकता है। बस सिचुएशन की बात है। अगर आप ये मान लीजिए आप कोई प्रेज़ेंट की बात कर रहे हैं, हाय वाला बात कर रहे हैं, और आप किसी का इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है वो या क्या है ऐसा करके, तो इज़ एम आर बोलिए। और वही प्रेज़ेंट वाले सेंटेंस में आप कुछ रखने की बात करना शुरू कर दिए हैं कि क्या आपके पास पैसा है? आपके पास पैसा क्यों है? आपके पास डॉलर कैसे है? तो आप हैव हैज़ बोलना शुरू कर दीजिए। वही था में बोलेंगे, और रखने की बात कर रहे हो कि आपके पास डॉलर कैसे था? आपके पास एक बाइक क्यों थी? आपके पास गन क्यों था? तो भाई हैड का इस्तेमाल करिए। तो आने वाले दिन में, यानी जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, मैं आपको बताऊँगा कि हेल्पिंग वर्ब जैसे वहाँ कई सारे थे। इज़, एम, आर, वाज़, वर, हैव, हैज़, डू, डज़, डिड, कैन, कुड, मे, माइट,
एक एक करके सबको मैं बताऊंगा इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर तब का भी व्हेन। हाँ, व्हेन मीन्स होता है जब, लेकिन तब का व्हेन नहीं होता है। एक साहब पूछ रहे हैं कि व्हेन का मतलब तब तब होता है क्या? नहीं, व्हेन मीन्स होता है कब। और जब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा ये कब कब बन जाएगा जब, लेकिन तब नहीं होता। सर तब के लिए क्या होता है? अगर आप ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं ना जिसमें जब और तब दोनों आ रहा है, तो ऐसे तब का तो कोई इंग्लिश ही नहीं होती है, सिर्फ कॉमा दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। जब मैं जागता हूँ तब कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं। जब मैं जागता हूँ तब कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं। जब के लिए बोलेंगे वेन, और तब के लिए बस कॉमा दे देंगे। जब तुम मुझे पैसा दोगे ना, तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। ये ये सेंटेंस जब और तब से शुरू हो रहा है ना, तो भैया जब की इंग्लिश वेन होगी, लेकिन तब के लिए कुछ भी नहीं, कॉमा देना पड़ेगा। जब और तब जोड़ी बन के आएंगे, तो जब की तो इंग्लिश वेन होगी, तब के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, तो आमतौर पर तब की कोई इंग्लिश नहीं होती। भाई देखो, ऐसे ही कोई बोलना होगा, ऐसे कन्वर्सेशन के दौरान कहना होगा, अच्छा तब, तो कहते देन। देन। ओके, चलिए। अगर आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है और अभी पूछ नहीं पा रहे हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई आदमी क्या से सवाल करता है ना, तो आप सीधा सीधा पूरा अटेंशन करो प्रोडक्ट या वो चीज सामान के बारे में, क्योंकि वही जानना चाहते हैं। फालतू के आप टाइम के बारे में सोचकर, इधर उधर की बातें सोचकर अपना और उसका दोनों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वेल, अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई, तो जरा दूसरा क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। हो सकता है वो इंसान व्हाट से कोई सवाल नहीं कर रहा है, वाई से कर रहा है। कोई मसला नहीं। जैसे कोई इंसान वाई से कोई क्वेश्चन करे ना, आप तुरंत जान जाइए, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि वो रीजन जानना है, वो रीजन जानना चाहता है, कारण, वजह। वाई हैव यू बीटन माय ब्रदर? वाई हैव यू बीटन माय ब्रदर? मेरे भाई को क्यों पीटा है तुमने? वजह बताओ, क्यों पीटा है तुमने? बिकॉज ही वॉज अब्यूजिंग मी। क्योंकि वो मुझे गाली दे रहा था भाई। हाँ, मुझे गाली दे रहा था वो। Okay. Why do you want to learn how to speak English? Why do you want to learn how to speak English? Because I want promotion in my job, and I know if I speak English well, then surely I will get promotion. That is why I'm learning how to speak English. भाई मुझको जॉब में प्रमोशन चाहिए, अब मुझे पता है इंग्लिश ही उस उसमें काम खराब कर रही है, इसलिए सीख रहा हूँ भाई। तो कोई इंसान क्यों से बोले ना, आप तुरंत रीजन पे आओ, वजह पे आओ, जिसको आप कारण भी कहते हो, कारण पे आइए कि इसके पीछे क्या वजह है। हाँ, why do you join excellent coaching center? Why did you join excellent coaching center? आपने excellent coaching center क्यों चुना? Because one of my friend told me that this coaching is really an amazing coaching center, and about each teacher is very hard working man, he works harder and harder. तो इस तरीके से आप अपनी बात को रखते जाएंगे। क्यों? क्यों चूज किया? बता रहा हूँ, इसलिए मैंने चूज किया। Why do you take medicine why do you take medicine each night? Every night. आप हर रोज दवा क्यों ले रहे हैं भाई? मैं हर रात को नोटिस कर रहा हूँ आप दवा ले रहे हैं। Why do you take medicine every night? Actually, I'm a patient. तो मैंने बोला क्यों? क्यों ले रहे हो? तो कारण बताओ। Actually, I'm a patient, and if I don't take medicine, then my problem may increase, and I may be in problem, I may be in trouble. That's why for precaution I take medicine. तो वजह बता दीजिए उसको अपने स्टाइल में। खैर, हो सकता है वो इंसान ना तो वाट से क्वेश्चन कर रहा है और ना तो वाई से कर रहा है, हाउ से कर रहा है, बहुत होशियार है। हाउ से कर रहा है, कोई मसला है ही नहीं। अगर हाउ से कर रहा है, ही वांट्स द वे, द मेथड, हाउ डू यू डू दैट वर्क। कोई इंसान हाउ से क्वेश्चन कर रहा है ना, मीन्स भाई तरीका जानना चाहता है वो, कि कैसे करते हो आप। मिसाल के तौर पर,
आप अच्छा अच्छा चाय बना लेते हैं, तो कोई आपसे पूछ सकता है, हाउ डू यू मेक टी? हाउ डू यू मेक टी? हाउ डू यू मेक टी मीन्स कैसे बनाते हो? अब बताओ उसको, पहले मैं दूध लेता हूँ, फिर मैं ये लेता हूँ, फिर आग जलाता हूँ, जो भी करते हो आप उसको प्रोसेस बताओ। So you speak English very well. How did you learn how to speak English? So fantastic. Could you please tell me something? कह रहे भाई, कैसे सीखे तुम इंग्लिश? जरा मुझे भी बताना, तरीका बताओ, वो तरीका जैसे आपने सीखा। You play well. So and I love your shirt. Uh, your what kind of shirt? I'm not going to understand the name of that shirt that is used in cricket. Drive. Okay, drive. So I love your drive shot, pull shot. Yes, pull shot. So, if someone asks you, how do you drive? How do you drive? So, अब बताओगे, पहले मैं अपने बल्ला को एक कदम आगे निकालता हूँ, फिर पैर को थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ। ऐसे करके आप उसका तरीका बताओ। आई होप कि आपको 3 वर्ड समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ वेयर के बारे में, लेकिन यहाँ पे लेते हैं 2 सेकंड्स का ब्रेक। तब तक मैं पानी पी लूँ और एक बार आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। Well, so we were talking about what, why, and how. Now let's talk about where. कोई इंसान इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है और उसने एक सवाल कर दिया, लेकिन सवाल वेयर से किया है। देखो दोस्त, कुछ भी ना सोचो सिवाय जगह के बारे में। किसी ने बोला वेयर, आप दुनिया की कोई बात में, उस वो बस जगह जानना चाहता है। आप क्यों इधर उधर के बारे में सोच रहे हो? वेयर डू यू लिव? करेक्ट, कहाँ रहते हो तुम? बस छोड़ा बोल दो, आई लिव इन लखनऊ। जगह का नाम बता दीजिए। वेयर डू यू वर्क? कहाँ, वेयर, बाद में कह रहा है वर्क, यानी कहाँ काम करते हो? आई वर्क इन सऊदी अरबिया। Where do you go for learning how to speak English? Where do you go for learning how to speak English? I go in Excellence Coaching Center to learn how to speak English. And where do you go for playing football? और कहाँ जाते फुटबॉल खेलने? I go to a playground, and that playground is really amazing. I love it. मैं एक प्लेग्राउंड में जाता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, बेहद पसंद है। जब भी कोई इंसान वेयर से कोई सवाल कर रहा है, वो बस जगह के बारे में जानना चाहता है। अब जगह ही बताओ ना भाई, इधर-उधर की बात आप करेंगे, आपका टाइम बर्बाद, उसका भी बर्बाद। वेल, हो सकता है उसने ना तो व्हाट से क्वेश्चन किया, ना तो व्हाई से, ना तो हाउ से, ना तो वेयर से। बहुत ही होशियार है वो। व्हेन से कर दिया, कोई मसला है ही नहीं। व्हेन से करना चाहता है, उसको करने दीजिए। लेकिन जैसे उसने व्हेन से क्वेश्चन किया ना, आप समझ जाइए, ये बंदा सिर्फ टाइम जानना चाहता है। इसको जगह बताकर कोई फ़ायदा नहीं, इसको उस प्रोडक्ट का नाम बताकर कोई फ़ायदा नहीं, इसको वजह नहीं बताया जाना चाहिए। वजह पूछ ही नहीं रहे तो बताएँगे क्यों? और इसको तरीका बताना तो महापाप है। तरीका भी नहीं बताइए। क्या पूछना चाहते हैं? टाइम। व्हेन डू यू गो योर कोचिंग सेंटर? अब ये ना कहो कि एक्सीलेंट में जाता हूँ तो ये आप बोल पूछो कि वो कह रहे हैं कि कब जाते हो? तो कहो आई गो देयर एट 8 o'clock। 8 बजे जाता हूँ, 8 बजे। वो टाइम जानना चाहते हो, टाइम ही बताइए ना भाई, उसको क्यों परेशान कर रहे हैं आप? व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट? व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट? कब सोते हो रात में? जनरली आई स्लीप एट 10 o'clock पीएम। ओह दैट्स ग्रेट। तो कई कि 10 बजे सो जाते हैं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल, uh, when did you pay uh, my money? मेरे पैसे कब दे रहे हो आप?
आप कह दीजिए। टाइम पूछ रहा है कब दे रहे हो, आप कह दीजिए कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, या वैसे तो आप देने वाले हैं नहीं, तो उसको बहुत लंबा टाइम बता दीजिए कि 4 साल बाद दे दूंगा, 5 साल बाद दे दूंगा। ठीक है। हाँ, टाइम बताना ही पड़ेगा आपको। ओके, आई विल पे टुमारो, आई विल गिव यू टुमारो, आई विल गिव यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, जो जितना लंबा बताना आप बता दीजिए। वेल, आई होप कि आपको ऊपर से 5 वर्ड समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं हाउ मेनी पर। हो सकता है कि वो कहे हाउ मेनी करके सवाल कर दे, भैया वो हाउ मेनी करे तो आप गिनती बताओ, संख्या, गिनती आती है ना, 1 2 3 4 5, वही बता दो बस। हाउ, वो गिनती है तो जानना चाहता है। वो कैसे सर? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, कितने भाई हैं भाई आपके? तो कहिए बस, छोटा में कर सकते, 5 हो जाएगा, 5। थोड़ा अच्छा बोलना चाहते हैं तो कहिए आई हैव 5 brothers। एंड हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? आई हैव 2 sisters। उसको संख्या जानना चाहता है। हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, कितने शर्ट्स हैं आपके पास? आई हैव 3 shirts। 3 है भाई। हाउ मेनी टॉफीज डू यू वांट टू बाय टुडे? आई वांट टू बाय 3 toffees। 4 toffees, 5 toffees। हाउ मेनी से सवाल करना मतलब बंदा जानना चाहता है गिनती, संख्या, नंबर। हाउ मच से अगर सवाल करे तो बहुत आसान है, वो वही जानना चाहता है, लेकिन वो चीज जो गिना ना जा सके लीटर में, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब गिनने वाली चीज है ही नहीं। तो इसके लिए मेनी की जगह पर मच बोलते हैं। हाउ मच, तुम कितना दूध पी लेते हो? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे? और आप कितना पानी पीते हो? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? और तो ये सारी बातें खत्म हो गई ना? कुछ कंफ्यूजन भी बनी है क्या? Why did you go there alone? हुआ के साथ हेल्पिंग और वर्ड यूज कर सकते हैं कुछ इस पे। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई वार्न यू? हाउ विल यू फाइंड एक्सीलेंट क्लासेस? व्हाई विल यू ज्वाइन एक्सीलेंट क्लासेस? व्हेन विल यू बाय अ कार? हाउ मच मनी डू यू हैव? ठीक है, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, अच्छा अच्छा है। वेल, अब जरा आ जाइए सेंटेंसेस पर। तो चलिए कुछ जरा सेंटेंस देख लें और बात को आज के बाद खत्म करें, क्योंकि टाइम भी ऊपर जा रहा है। मतलब जा नहीं रहा है, घबराइए मत, जा सकता है, बहुत बदमाश है वो, तुरंत भाग जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, वह क्या है, गौर से देखिए, यही है वो, देखिए इसको, वह क्या है। अगर आप इसको बोलना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, बोलिए। सब क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बोलना है, बाद वाले को 2 नंबर पर, और पहले वाले को 3 नंबर पर। तो कहिए व्हाट इज डैट? वह क्या है? व्हाट इज डैट? आपने देखा, ये व्हाट है ना, देखिए ये व्हाट, ये इज हेल्पिंग ऑफ है ना, देखिए इज यहाँ पे आ गया। तो यही होना चाहिए, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। यह क्या है? वॉट, यहाँ पे बोलेंगे इज, यहाँ बोलेंगे दिस। वॉट इज दिस? वह गरीब, वह गरीब क्यों है? वाई इज दैट मैन पुअर? यहाँ पर मैन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वाई इज दैट पुअर? तुम्हारे पास पैसा क्यों है? वाई हैव यू मनी? वह क्या है? वॉट इज दिस?
यहाँ पे लिखा है वह क्या है, यहाँ पे गलती से हो गया दिस, इसको डेट होना चाहिए था। वह डॉक्टर कब बनेगा, when will he be a doctor, when will he be a doctor। आप आप कहाँ पढ़ाते हैं, where do you teach, where do you teach, where do you teach। वह कहाँ जाता है, where does he go, where does he go, where does he go। आप कब आपको कब पढ़ना चाहिए, when should you read। वह कैसे दोषी था, how was he guilty। वे लोग क्या थे, what were those। वे सब दुखी क्यों थे, why were those all sad। आपके पास एक मोबाइल क्यों था, why had you a mobile। आप सॉरी, वह एक अभियंता कैसे है, हाउ इज ही एन इंजीनियर। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई। वह क्या है, व्हाट इज दैट। यह क्या है, व्हाट इज दिस। ये क्या है, व्हाट आर दीज। वो क्या है, व्हाट आर दोज। यह आदमी क्या है, व्हाट इज दिस मैन। वह बच्चा था, दैट वाज अ चाइल्ड। तुम्हारी बहन क्या है, व्हाट इज योर सिस्टर। आपके पिताजी कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। तुम क्यों हो, सॉरी तुम क्या हो, व्हाट आर यू। तुम्हारे पास दोस्त तुम्हारे दोस्त लोग क्या हैं, व्हाट आर योर फ्रेंड्स। मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। तुम्हारे भाई का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर। रामायण क्या है, व्हाट इज रामायण। तुम कौन हो, हु आर यू। मैं कौन हूँ, आई एम। मैं कौन हूँ, हु एम आई। आपके पिताजी कौन है, हु इज योर फादर। आपकी पत्नी कौन है, हु इज योर वाइफ। तुम्हारे दोस्त लोग कौन हैं, हु इज योर फ्रेंड्स। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वे कहाँ हैं, वेयर आर दोज। बिल्ली कहाँ है, वेयर इज द कैट। बिल्लियाँ कहाँ हैं, वेयर आर द कैट्स। अस्पताल कहाँ है, वेयर इज द हॉस्पिटल। किताब कहाँ है, वेयर इज द बुक। वे लोग कहाँ हैं, वेयर आर दे। आपकी बहन क्या है, व्हाट इज योर सिस्टर। मदन कहाँ है, वेयर इज मदन। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। भगवान कहाँ है, वेयर इज गॉड। लता कहाँ है, वेयर इज लता। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर। पर एक सॉरी मुख्यमंत्री है ना, गलती से प्राइम बोलिए। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वह क्या था, व्हाट वाज ही, व्हाट वाज ही। क्या इतने एग्जाम्पल्स इनफ हैं इस बात को समझने के लिए। नहीं है तो यहाँ भी इतना एग्जाम्पल है, थोड़ा आप लोग इसको पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, ठीक है।
अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट होकर देख सकते हैं, अनम्यूट हो रहा है कि नहीं, होना होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्या बात है, आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी? सर मुझको थोड़ा हाउ मच और हाउ हाउ मेनी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आपके पास कितना मोबाइल है? जो सवाल किए मेरे आइए पास दो सामने। फोन है सर। अच्छा, तो अभी मैंने क्या बोला है? मेरी बात को रिपीट करिएगा, आपके पास कितना मोबाइल है? यस सर। मैंने जो बोला उसको रिपीट करिए तो। आपके पास कितना मोबाइल है, इसी को मेरे रिपीट पास करिए। कितना फोन है? बस उसी कितना के लिए तो बोलते हैं हाउ मैनी। कई हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव? हाँ, मतलब हैव यू भी कर सकते हैं। जैसे जब रखने की बात होती है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैवेंट मनी, और कुछ लोग कहते हैं आई डोंट हैव मनी। दोनों बोलना सही होता है। यस सर। हाँ। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपके आपके पास दोस्त कितने हैं? कितने भाई? आपके पास दोस्त कितने? हाँ, कितने हैं तो बताइए। मेरे पास 3 दोस्त हैं सर। तो अगर मैं जो सवाल किया इंग्लिश में किया रहता तो मैं बोलता हाउ मेनी जी। फ्रेंड्स डू यू हैव, और आप इंग्लिश में जवाब देते तो आप कहते आई हैव 3 फ्रेंड्स। आई हैव 3 फ्रेंड्स। जी। ओके सर। और किसी भाई के पास कोई क्वेश्चन है? पूछ लीजिए भाई। ठीक है, आप में से किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। यही प्रॉब्लम होती है अच्छा पढ़ा देने में। अच्छा पढ़ा देंगे ना तो सवाल ही नहीं लोग करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा खराब भी पढ़ाना जरूरी है, ताकि बच्चे डाउट में हो जाएं और सवाल करें। वेल, बहुत अच्छा। एक बार और कहता हूँ, आप में से किसी के पास कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सर। वेल, आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं मिला। मुझे वो जानकर अच्छा लगा कि आप जो पढ़ा आपको सब समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाय द वे, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे सर और वेन। कल उससे जरूर पूछेंगे। सर चलें, ठीक है, कल ही बता दें। नहीं सर, नहीं सर, पूछे, अरे सर पूछिए सर आप। वेन में आज जब और जो आप बता रहे थे कि जहाँ कहाँ, हाँ हाँ, तो पूछिए, सवाल स्टार्टिंग पूछिए। में आपने बताया है ना। जी जी, आप सवाल तो पूछिए अपना उसमें। ये ये यूज मतलब कैसे होता है, जैसे कि एक मैं बार आपको इसे बता रहा बता हूँ, दें। मैं आपको बता हम्म, रहा हूँ। एक बार मैं आपसे जी सवाल सर। कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। व्हेन डू यू व्हेन डू यू ईट डिनर? कब तुमने डिनर किया? किया नहीं, करते हैं, आदत डू बोल रहा हूँ। वेन। आप कब करते हैं व्हेन डू यू ईट डिनर? हाँ, वेन टू यू डिनर, कब डिनर करते हैं? तो आप बताइए, हमको टाइम बता दीजिए, एक बात खत्म हो। आप व्हेन का मतलब टाइम नहीं आई पता टेक है, टाइम बता डिनर। दीजिए। आई टेक डिनर बिफोर 8 o'clock। ग्रेट। ओके। Why don't you listen me when I call your name? या why don't you unmute when I call your name? मैंने कहा why don't you unmute? आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं होते हैं? When I call your name,
जब मैं आपका नाम पुकारता हूँ, बोलता हूँ, व्हेन आई, जब, जब, व्हेन आई कॉल योर नेम, जब मैं आप लोग का नाम लेता हूँ तो आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं होते हैं? एक था ये एग्जाम्पल, जैसा कि आपने कहा। थोड़ा और This एग्जाम्पल। side use when and jab, and before use when kab. यस, Ask, friends ask question when इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड यू वांट टू से कब, then kab. you will use question word, Yes, then question word jab. helping verb, means when Yeah. plus helping verb. Yes, sir. And Yes. you are not going to ask a question, but you are telling something, you are giving some information, then use when and subject, not helping verb. Okay, sir. I got it. I will review तो आप ही बता this दीजिए कि chapter, inshallah. आप बता दीजिए कि इसमें वेन का क्या रोल है? जब बारिश When आई, जब आपने अभी अभी जो पूछ या रहा हूँ उसका बताना है। जब बारिश शुरू हुई तो मैं सो रहा था, कैसे बोलेंगे? जब बारिश शुरू हुई तो मैं सो रहा था। when जब इसमें वेन लगाएंगे ना, जब बारिश शुरू वेन जब हो गया हम्म, तब मैं सो रहा था। हम्म। when rain start when I sleep. Window. बेट ऐसे भी कर सकते हैं, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन इट रेन्स, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन इट रेन्ड। और इसका मतलब शुरू ही नहीं हुआ, इसका मतलब बारिश हुई। मैं सो रहा था बारिश जब हुई। बारिश हुई। अगर आप ये कहना हुई, जब आप ये कहना चाहते हैं कि बारिश, जब बारिश शुरू हुई, तो आप बोलेंगे बिगेन टू। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन इट बिगेन टू रेन। began to ठीक है। okay, अभी लास्ट में एक बात सबको बता दिया जाए कि अ, आज से नहीं, कल से जो प्रैक्टिस ग्रुप है उसमें हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और उसके जो मॉनिटर हैं, जो सारा उसको मैनेजमेंट देखेंगे, वो अंकित भाई हैं। इनको मैं टैग कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि डेली एक लेसन, ये अंकित जी हैं, इनका पूरा नाम अंकित मलानी है, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। एक पेज या वो कैब का रहेगा, ट्रांसलेशन का हो सकता है, एडवांस स्ट्रक्चर्स हो सकता है, कुछ ना कुछ मतलब, या अ, कोई ना कोई एक पेज डेली उसमें हम लोग शेयर करेंगे, और उस पर आप उसको डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे। अगर टॉपिक होगा तो उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप बोलेंगे, सुनेंगे, बताएंगे। तो ये डेली काम शुरू होगा कल से। अच्छा, कब से शुरू होगा? तो टाइम अभी मैंने दिया है 10 बजे से, लेकिन एक बार मैं इनसे पूछूंगा कि 10 बजे ये कंफर्टेबल हैं? अगर कंफर्टेबल हों तो 10 बजे के बाद, अब 10 बजे के बाद आप क्लास खत्म होने के बाद भी आ सकते हैं, या बाद में ही आएंगे। अभी टाइम हम डिस्कस करके फिर कल आपको बता देंगे। तो कल से लाजमी तौर पर आप लोग प्रैक्टिस ग्रुप में जाएं, और एक लेसन उसमें ज़रूर पढ़ाया जाएगा, कभी वोकैब का, कभी एडवांस स्ट्रक्चर का। उसमें अ, आप अपनी बात शेयर करेंगे, बाकी जो उसमें मॉनिटर वो बताएंगे, आप सुनेंगे। इस तरीके से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए भाई, कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं। आप यहाँ पे जूम जूम क्लासेस आप लेते हैं तो आप मुझे पैसा देते हैं। व्हाट्सएप पे जाकर पढ़ते हैं तो हमको व्हाट्सएप पर कोई पैसा नहीं देता है। आप बड़े लोग हैं, सारी बात जानते हैं कि व्हाट्सएप तो किसी को पैसा देता नहीं। बस आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि आप जल्द से जल्द आप इंग्लिश बोलना सीख जाएँ, और आप भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ, और मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। आप बोलना सीख गए तो लाज़िम-सी बात है मैं कामयाब हो जाऊँगा। आप दूसरों को भी बताएँगे कि हाँ, मैंने सीखा। आप ना कामयाब हो गए तो मैं भी हो जाऊँगा। तो 15 मिनट 20 मिनट जैसे वो गाइड करेंगे। कल क्या प्रोग्राम है, कल इनको मैं अनम्यूट करूँगा यहीं पर, तो सब यहीं पर बता देंगे, और उसके बाद आप लोग जाइए, उसमें बोलिए, और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाइए, ताकि कल आपका ये क्लास खत्म हो जाए। मान लीजिए 3 महीने बाद आपका ये लाइव क्लास तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस ग्रुप अगर आप ज़िंदा किए रखेंगे,
उसमें एक रूटीन बना लेंगे, तो हमेशा फ्री में जब भी आपका दिल किया उसमें जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो कभी भी ना आप वीक नहीं महसूस करेंगे। ये आपका कोर्स खत्म हो जाने के बाद भी आपको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ना कुछ वहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे। सोच तो अच्छी है, काम मैंने शुरू किया है, अब सक्सेसफुल बनाना आपका काम है। आप आपको बात समझ में आई तो बनाइए, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मेरा नया बैच चलेगा, तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो करना ही पड़ेगा। और अगर वो मिशन हुआ बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये इसका इस क्लास का प्रैक्टिस ग्रुप रहेगा सर, या जो पुराना वाला है? देखिए, वहां पर इस क्लास उस क्लास से मतलब नहीं है। एक एक पेज रहेगा, एक जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा, यही मान लीजिए, इसी को मान लीजिए डेमो के तौर पर। अब इस पेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप उसमें, अगर आप उसको जानते तो आप बताएंगे, नहीं जानते तो आप पूछेंगे, वो बताएंगे, या बस आप जाके उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ प्रैक्टिस चल रही है कि यह क्या है, वह क्या है, तो एक आदमी बताएगा उसको, व्हाट इज दैट, यह क्या है, व्हाट इज दिस। ये नहीं करो कि यही रहेगा, वहाँ कई तरह का हमने पीडीएफ उनको दिया है। नहीं सर, मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंकित सर होंगे, हमारे मॉनिटर जो होंगे, तो कि हम लोगों के ही ग्रुप के होंगे ना? बेशक वो आप ही के ग्रुप के हैं, इसमें देखिए यहीं पर तो हैं, देखिए यहीं पर हैं, सब सारी बातें सुन रहे ठीक है। हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है ना? नहीं तो बोलना चाहिए इनको ना। नहीं, उस बोलेंगे। लायक वो हैं तो मॉनिटर बन रहे हैं, बधाई हो। हाँ तो ठीक है, तब इनको मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। भाई थोड़ा आकर बता दीजिए आप। खाना खा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मैं भी सोच खाना लीजिए। ही खा रहा हूँ। तो खाना खाने में बात नहीं किया जाता है, आप आराम से आप लोग खा लीजिए। और मजबूरी है, बात करना पड़ेगा। अपने हाँ, कभी तो अभी ना दरअसल इसलिए उनको नहीं बुला रहा था ना, वो भी प्रोग्राम बनाए नहीं होंगे कि कैसे क्या करना है। आज हम लोग कल से ये काम डिसाइड किए हैं। कल से हम लोग बना रहे कि कैसे क्या किया जाए, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए एक प्रैक्टिस का आपका जगह बन जाए, और आप कभी भी ना तनहा फील ना करें, क्लास खत्म होने के बाद भी तनहा फील ना करें। जब भी दिक्कत हो वहाँ जाएं, प्रैक्टिस करें। हेलो। ठीक। सारे लोग इनके रिस्पेक्ट के साथ प्रैक्टिस करें, इनसे कुछ सीखें, और मैं भी इनसे कुछ सीखूंगा। जी जी। वेल, और चूंकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा, आप लोगों के लिए मैं कितना सोचता हूँ, फिक्र करता हूँ, तो थोड़ी सी आप लोग भी मेरे बारे में सोचें। कोई ऐसा बंदा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसको बताएं, फैलाएं। मेरा ऑनलाइन क्लास में मैं अभी नया हूँ, 6 महीना मुझे नहीं हुए, करीब 6 महीना अभी होने को है, तो हेलो। थोड़ा दूसर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा था सर, ये अपना ये जो बैच है ना सर, इसी बैच का एक ग्रुप बनाते तो सही रहता ना सर। नहीं, वो इसी बैच का ग्रुप है, हमारे पास अब ज़्यादा बैच नहीं चल रहा है। ठीक है ना? तो यही सब बच्चे नहीं, हैं। अभी अभी जो प्रैक्टिस ग्रुप है उसमें सर बहुत सारे आदमी हैं। सर तो आप खुश नसीब हैं कि उसमें बहुत सारे आदमी हैं। आप लकी हैं सर, ये तो बहुत खुश नसीबी की बात है कि बहुत सारे आदमी हैं। आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें। लेकिन आप 10 बजे के बाद आएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, सब सब वो गल्फ वाले ही मिलेंगे। रात 10 बजे का ओके। पहले इंडिया वाले लोग रहते हैं, 10 बजे के बाद सब गल्फ वाले रहते हैं। तो ये तो ओके। बहुत खुश नसीबी की बात है सर, कि ज्यादा, ये कन्वर्सेशन का क्लास है, ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा आइडियाज मिलेगा। ओके। ओके, तो जरा मेरे बारे में सोचिएगा। आई होप कि आप, सोच रहा हूँ सर, मैं दो तीन फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग सुनता ही नहीं। सेम प्रॉब्लम यही। नहीं तो उनको बताइए कि मैं काला जादू भी जानता हूँ, मैंने तांत्रिक विद्या सीखा है, नहीं सुनने बताइए, उनका नाम और बताइए, उनका नाम बताइए, और मैं यहाँ से काला जादू मारूंगा, एडमिशन हो जाएगा। नहीं सर, बोला हूँ मेरा जो भी फ्रेंड है उसको मैं बोल के रखा हूँ। मेरा छोटा भाई भी है, उसको भी मैं बोला हूँ, वो घर में है। उसको भी मैं बोला हूँ कि सबको ज्वाइन कर लेते। तो मेरा भांजा लोग है, उससे भी बोला हूँ। हम्म। बाकी सभी लोग कोशिश करेंगे। गाड़ी गाड़ी एक तरफ से नहीं चलती है। आप जी आप सर, सही है। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, दोनों लोग खुश रहेंगे।
जिस